Yourself. My name is Sanullah Khan. My father name is Amanullah Khan. I belong to Miawali. I passed my matric from Islamic source to Moj and I passed my from Spirit College Miawali. इनिशियल टेस्ट कौन सा दिया? इधर लॉ दिया है इसमें ICSP का इसका हो रहा है सच बोलना है पकना नहीं. So you appeared in Army Selection Center, Lahore, for the initial test. Why? Why not? I think the closer center to you is either DA Khan or Faisalabad. Why you have chosen Lahore as your center? My father works in Lahore and my father decided that it is best center for you. So I gave a test in Lahore. So what is your father? My father is transport manager. In Lahore. So since how long he is here in Lahore? Maximum 18 years. 18. And your family is in Miawali. I'm friendly Miawali. You did your matric from Miawali. Yes, I did my And your FSC from and FSC from Australia. Miawali. So how you have prepared yourself for the ICSP? Not इतनी तैयारी नहीं की. मैंने बताई नहीं कितनी. मैं पूछा हाउ, क्या कितनी कितनी की है, क्या की है, कितनी की है, कैसे की है. यूट्यूब वाले ने क्या कहा था, क्या करना है, ये बताओ ना. फिजिकल की थोड़ी बहुत तैयारी की है और उसके अलावा फिजिकल की how you have prepared yourself for the physical. फ्रॉम चाइल्डहुड फिजिकल. So what you have been doing what you have been doing to make you physical fit रनिंग मैक्सिमम 4 किलोमीटर every day and and do push-ups and also chin-ups. so you prepared yourself from the YouTube. What they told you to do? Yeah, what you did according to the YouTube. Military planning and ISB requirement. Tell me about that video which has told you about the military planning. Who has told you and what he has told you to do in the military planning? जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक. What is that bloody damn requirement? Tell me that now. You said that you followed the YouTube. ठीक है. I want you to tell me what they told you. You tell me that thing. Yes, tell me. I am a layman. I have got no approach for the YouTube, but you have an approach for the YouTube. So whatever you have heard, you must do to clear the ISSB. Tell me that. I will show his personality that they are. बाद में देता हूँ. अच्छा. Your percentage marks 94% in metric and 80% intermediate. Why less marks in intermediate? Basically, intermediate is as conceptual from metric and therefore I cannot prepare. नहीं, the level of preparedness you did in metric, was that same in the intermediate? Same but Did you study less in intermediate as compared to metric? No, I worked with hard but intermediate is conceptual as compared to metrics. Did you join any academy for the intermediate? I know. And did you join any academy in the metric? So we suppose that you will be not recommended at the ISSB. So what would be the reasons? Tell me. Have you understood my question? Yes, sir. Yes, tell me the reasons. You think that these can be the reasons for your rejection at the ISSB? जो sir, I can't speak. No, English. ISB is which requirement for me I cannot fully fulfill those requirements which is useful for ISB. That's why. इसमें नॉर्मली जवाब ये देते होते हैं कि जो इंटरव्यू से पहले जो आपने टेस्ट दिए हैं ना, उसमें जो आपने 2 नंबरी की है वो बता देते हैं.
जैसे आप ये बता सकते हो कि भाई आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, आई थिंक दिस मे बी द कॉज फॉर माई रिजेक्शन। अपनी मतलब डीमेरिट्स बता सकते हैं। लाजमी डीमेरिट्स लाजमी नहीं है ना, कुछ भी आप देखो ना, ऑलरेडी कुछ आपने कर दिया। अब माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, माई राइटिंग स्पीड इज नॉट गुड। देखो ना, मैं आपको बताता हूँ ना, आपका जो ISSB में जो आपका सबसे, मैंने क्या कहा था, 3 काम है, बोलना, लिखना और फिजिकल। तुम्हारा सबसे टफ काम, जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग काम है, वो फिजिकल है। अब फिजिकल में ये है कि अगर वहाँ पे तुमने, ये मेरी अल्फाज सुन लो, अगर वहाँ पे तुमने लूप में 15 ऑब्स्टिकल्स कर लिए, लूप में इनके 9 किए और फिर उसके ऊपर 7, 5, 6 और किए लूप में, तुम रिकमेंड हो जाओगे। ये सुन लो मेरी, ठीक है? क्योंकि तुम्हें वो काम करना है जो बाकी नहीं कर सकते। टास्क में भी कि जी कहीं फटा किसी से लग ही नहीं रहा, फटा किसी से उठ ही नहीं रहा, कहीं किसी से छलांग लग ही नहीं रही, मेरी जान अगर तुमने ये काम डाल दिया तुम रिकमेंड हो जाओगे। बाकी वहाँ पे उसके तरले नहीं मारने के, उर्दू बोल दो, देनी तो इंग्लिश असल। व्हाट इज इंग्लिश? देखो ना, जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ से तुम घर जाओगे या पिछले पूरा जितने 5-6 महीने तुम जहाँ जिस जगह फिरे हो, जो चीज़ तुम्हें दिखी है उसकी तुम्हें अंग्रेजी आती है कि नहीं आती? तो अंग्रेजी बोलना है क्या? उन चीज़ों को जोड़ के वो बिखरी हुई है, आपको सब चीज़ आप आ जाओगे सारे लाइन लगाने में, तू आगे तो पीछे, पीछे, ये अंग्रेजी है। बस करने के नंबर नहीं ISSB में, कोशिश के नंबर है। और तुम्हारे जो सिलेक्ट होने की वजह बनेगी ना, एक तो मैंने ये दूसरी, तुम बिल्कुल सीधे आदमी हो। यू हैव बीन हियर इन लाहौर फॉर द लास्ट 5-6 months। इनिशियल भी यहीं से किया ना, ठीक है? यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हो? नहीं, अच्छा, ठीक। तुम्हें ये जो लड़कों की हरामजादगी है तुम्हारे पे नहीं चढ़ी, तुम्हारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये बात याद है। 3 पॉइंट्स मेन दिमाग में रखने लाजमी, उनकी बात गौर से सुनो। ईमान तुम्हारे वैसे भी ऐसे बने हुए हैं, अल्लाह ने बनाए ऐसे नहीं, थोड़े अजीब से ना ऐसे करके। हाँ, ये वो ज़्यादा कैप्चरिंग पावर ज़्यादा है। मेरे भी थी टेंशन, ठीक है? उनकी बात को माइन्यूट डिटेल, बात कोई उनकी मिसिंग ना हो, यहाँ से यहाँ जाने, इधर से जाएगी इधर और फिर निकलेगी इधर और इधर, ठीक है? नादेरी की देखिए वीडियो, तुम्हें वहाँ नादेरी का भाव बनना है, ये बात है अगर तुमको सिलेक्ट होना है, ठीक है? 2 के 2 मिनट CD 1 to 5, चौथा गियर स्टार्ट में होता है, पहला गियर जो दाना, तुम्हारा काम है पहला गियर गुम 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 हो गया, ठीक है? हाँ, मतलब ये है कि तुम्हें मैं यहाँ से भेजूँ और मैं फ़ोन करूँगा किधर हो और मुझे लगे कि तुम जो है ना नहर पे हो गए, आपको सर मैं रेस कोर्स पार्क पहुँचाऊँ, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। ये तुमने जब ऐसी करके अगले को दिखा दी ना, GTO पागल हो जाएगा, जो कोई होता नहीं होता, इसको मैं देखा हूँ, ठीक है? बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके ज़बरदस्त हैं, ये सारी चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन ये जो जिनके आपने लिखे हैं इनके सारे देखो ये आपने हल नहीं किए। कल आना है हैं? डॉट लगाए अरे खुदा के बंदे, तुमने डॉट भी जो है ना खाने में लगाना चाहिए। एक बार इनको पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है? एंटिसिपेट द नीड्स ऑफ अदर्स। आई एंटिसिपेट द नीड्स ऑफ अदर, मैं दूसरों की ज़रूरियात को ध्यान रखता हूँ। नहीं, मैं आपको इसका मतलब समझा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा दोस्त है, इसकी
इसकी शक्ल देख के बताता हूँ यार अब इसका सिगरेट पीने का दिल कर, कहता हूँ चल आज नहीं सिगरेट पी। ये होता है कि अगले की जो आपके जानने वाले हैं आपको पहले पता चल जाए कि यार ये इनकी उनकी इमोशन देख के मतलब पता चलेगा। इमोशन या जो मर्जी, इसका मतलब ये होता है आई एंटिसिपेट द नीड्स ऑफ अदर्स। मुझे पता चल जाता है कि अगले को क्या चाहिए, ठीक है कि नहीं। हाँ, मैं जैसे आपकी वालदा को पता चल जाता है कि आप इसको चाय की जरूरत है, वो चाय बना, अब वालदा को अब्बा जी को पता चल जाता है उन्होंने चाय पीनी, अब इनको चाय पिला, ये फ़लाँ सिचुएशन में अब इनको पानी पिला, ठीक है। वालदा का मूड ख़राब है तो अब्बा जी को पता चल जाता है अब्बा जी वालदा के लिए सूट गिफ्ट ले आते हैं, हालात ख़राब है, आगे अंदर जाके फायरिंग ही हुई। सर इसका जवाब क्या देना भैया, 6 माह हो गए आजकल क्या कर रहे हो? जो कर रहे हो बताओ, मियाँ वाली में करो जो करना है। एक सेटअप बनाओ ना, असल में यही होता है ना, उसने आपको पकड़ना है कि आपने तैयारी की है कि नहीं की, वो तो आपने कह दिया नहीं की, आपने यूट्यूब से की है, ठीक है। अब वो इधर उधर की बातें करके ना देगा, अच्छा आपने 24 घंटे की रूटीन बताओ। जब वो बताते हुए आप परेशान हो गए हो ना, इसका मतलब है ही नहीं कोई, या जो है वो बताने वाली नहीं है, जो है वो बताने वाली नहीं है। बस ये पहले से आपने रखना है, सुबह में उठता था, इधर जाता था, ये करता था, वो करता था, फिर ये करता था, सब्जी ले आता था, खाना करता था, कहना करता था। वो जब स्मूथ सेलिंग होगी ना देन ही विल लव यू। लेकिन आप रूटीन दौर में टकरे मारो, समझ नहीं आ रही कि यार इस टाइम को मैं कहाँ पे यूटिलाइज करूँ, ठीक है कि नहीं। बताओ ठीक है, अगर आप 2 घंटे यूट्यूब पे बैठते हो, फेसबुक पे बैठते हो, व्हाट्सएप पे बैठते हो, दोस्तों में कब बोलता है, एक रूटीन नहीं है कि ना गली में क्रिकेट खेल लेता है कोई बंदा, वो पहले से ये करके जाओ, ठीक है। बाकी जो है ना तुम नेचुरली अभी तक जितने बंदे जा रहे हैं, मैं बड़ी बात नहीं कर रही, लेकिन टीम के जितने भी बंदे हैं उसमें अगर कोई मुझे कहना कि नेचुरली कौन सा बंदा ऐसा है जो रिकमेंड होने के लिए बना है, इन सब में तुम हो। वैसे तुम लोग ये बात सेट में रखें, लेकिन तुम नेचुरली अच्छे बंदे, मीन के तुम्हें देख के अगले को ये लगता है कि यार ये बन नहीं रहा, ये बनता नहीं है, यू आर इन योर प्योरेस्ट फॉर्म। इन सब से पूछो ना कोई चीज़, ये कोशिश करते हैं कि हमने बतानी है, हमें नहीं पता, पर तुम सीधा को मुझे नहीं पता। कोई एक बंदा था, उसने पूछा 20 करोड़ रुपया से क्या करोगे। वो लड़का जो मुझे अपनी कहानी सुना रहा, मेरे तो आंखों में आंसू वैसे नहीं आए। मैंने कहा यार क्या बेटी है, मैंने कहा 20 करोड़ रुपया मिल जाए क्या करोगे? मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्या जवाब है सर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। देखो ना, अच्छा यार रिलैक्स, समझो, सोचो क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या तुम क्या घर बनाओगे। उसने उसको ऐसे कर कहा सब घर बना, नीचा कर तो है। वो एक कुछ शॉट आता होता है फेसबुक पे, वो बंदा किसी को रिश्वत देने आता है तो वो अपनी माँ को पूछता है कि ये इतने पैसों का अम्मा क्या करेंगे। वो जिस गांव में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, लोकल टाउन होता है, वो कहता है कि उसकी माँ कहती है इतने पैसों में तो ये आधा शहर खरीद लें हम, या आधा टाउन खरीद लें, या ब्रिज खरीद लें। तो उसने कहा अम्मा चाहिए, कहते हम नहीं जाता है। कहते वो देख मैं तो माई के लिए रह कमाता हूँ, माई के तो चाहिए, कहते हम नहीं जा करना। तो जितने आप बात करते हुए नेचुरल, कल मुझे लड़के परसों मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसने एक जुमला बनाया था, खुदा की कसम जुमला ले गया मेरी, ठीक है। उस स्पॉट का उसने बनाया था, उसने वो खेलता क्रिकेट था, अब उसने क्या बनाया कि स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट पे जब बॉल लगती है, ऐसा कुछ जुमला बनाया, मुझे जुमला भूल गया। अहद को जानते हैं आप, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, उसने जुमला बनाया था इफ आई वॉज अ किंग, मैं चिंची रिक्शे वैन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि चिंची रिक्शे से उसके भाई की टक्कर लग के उसकी हड्डी टूट गई थी। अपने पे लोग हम क्या कहते हैं जी, किंग बन गए, एटम बम बना रहे, तारे तोड़ के कश्मीर फतह कर लिया, लेवल पे
ठीक है, इतने बंदे ऐसे हैं इस फील्ड में जिसमें मैं हूँ जो मुझसे बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप अभी बेशक जाके चेक कर लो कहीं से भी, मैं जैसे लड़कों को बात समझाता हूँ जैसे लोग मेरी बात समझते हैं, क्योंकि मैं ऊपर से उठ के नीचे आके आपके लेवल पे आता हूँ, आपको लगता है कि यार ये उतना ही बनता है, बाकी अपनी फूफा में रहे। आई कम टू योर लेवल एंड देन आई टीच यू, आई चेक यू, आई सजेस्ट यू। किसी को मैं प्यार से समझाता हूँ, किसी को डांट के, किसी को गाली से समझाता हूँ, मुझे पता है इसने ऐसे ही समझ। खान पे देखा मैं कल चढ़ गया था, ऐसा मैं किसी भी नहीं, मुझे पता है खान ने ऐसी समझ। अब खान को ये उधर काम आएगी बात, ठीक है, चलो थैंक यू।